Good morning, sir. Yeah, good morning. Can we start the Sir, 1 minute. session? Yeah. Am I audible? Yes, very much. Yes, ma'am. Okay. Sir, I didn't receive any mail from your side That for the was link. this is an automatic mail. Everybody would have received it, ma'am. No, I didn't. Yesterday I registered. So I just asked Twinkle teacher. She sent, Okay. so in that I have joined, but my name is not visible. You So can I change pressed- your this thing. Change the display name if you want to. By Okay. right clicking. Fine. All right. I'm there. My name is not visible, Yes. but I'm there. Able to see. Okay, sir. Okay. Jayanti, ma'am. Thank you. Yeah. Yeah. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Twinkle teacher told no on your cameras. Everybody. I hope you are there with your parents. It's okay. I'll be talking about it in a while. Okay. So, Fine, sir. Now the platform is yours. sure. So, ma'am, you wanted to begin the session? Twinkle, ma'am? Yes, sir. Yeah, please. Okay. A very good morning to one and all present over here. I hope everyone are fine and okay. Okay, myself, Mrs. Twinkle Sangwan, on behalf of Matrix Academy Senior Section, welcome you all for the Orientation to Score More program. A hearty welcome to the host of this webinar, Mr. Paresh Shah, sir. Sir is the founder, CEO of Symphony, having an experience of more than 24 years in attitudinal and behavior training program based on ontological principles, the scientific design of being part of the human beings. His passion for working with youngsters and parents towards a complete transformation, that is a training for complete family, the heart of Indian society and culture, lead him to lay the foundation of training and coaching organization and aptly named it Symphony, dedicated to discover and express the power within and creating synergy between self and surrounding environment for every individual, creating a symphony of life. Not only this, Symphony has another founder member, Ms. Bijal Shah, an MBA Finance, NMIMS Institute, adding a special flavor as an educational consultant to the organization. She is also the wife of Paresh Shah. She is having more than 20 years of experience in grooming the young generation. Now I hand over the charge to Sir to continue with the program. Sir, you may proceed. Thank you. Welcome, sir. Yeah, thank you and wish you all the best, all of you. Thanks for being here. There is something that I want to add to what Jayanti ma'am told in the beginning. And Twinkle ma'am also requested you to switch on your camera. There is something called netiquette. Okay. Why a person needs to switch on the camera when the webinar is there? It is nothing to do with the speaker. It is nothing to do with the respect for the speaker and all that. That is only one part, which is just an expression of your relationship with the speaker. But most importantly, when your camera is switched on, you are naturally able to concentrate effortlessly because your subconscious mind is telling you that your camera is on, right? And as a result of that, what happens is you are 110% unknowingly focusing on what's being said. So your distractions are minimized
subconsciously also. So my request to each and every one of you, because see, I'm going to put the presentation on. I'm not going to be able to look at you when I'm going to speak. That's the limitation of a webinar. Okay. And even if I am going to look at you, I will not be able to concentrate on what I want to speak. And in fact, if you look here and there, and if you get up and do some kind of work which is not related to the webinar, what will happen is I will get distracted and I will get out of the hand. So switching on your camera, number one, it is optional. Number two, it is in your own self-interest that your concentration on what is being said is undivided, because we all want to look good, right? We all want to look good subconsciously and consciously. So my request is, there is nothing wrong in switching the camera off or keeping the camera on. It is in your self-interest that you switch on your camera. We are not going to snoop on you. We are not going to, it is not to spy on you, whether you are listening or not, whether you are on track or not. It is for your own self-interest. You should always keep your camera on. It will really make your life much more easier. Okay. So a request to make this session more effective for you, the request would be to keep your cameras on all the time. Now, of course, if there is some distraction, if you think that it is going to look bad, so switch off for a while, do your busy work, whatever you need to do, and come back. Right? I'm not going to repeat this instruction again. So I would hope that the good sense prevails over everybody. And the people who have kept the camera on, I really appreciate you. And rest of you, I will still request you to switch on your camera for your own sake. Okay. That said and done, I am here, and this is the presentation. I'd like to do some arrangements on my screen, on my laptop, so that I don't get distracted during the session. Okay, now here we go. Welcome to the Orientation to Score More program by Paresha, that is me. We run an institute called Symphony. It is discovering and expressing the power within each and every one of our participants. And what we are going to do is we are recording this session. We'll be putting this session on the group we create. Symphony ka ek group banaya jayega. We'll make a group of Symphony. There is a request by one of the parents that अगर आप हिंदी में थोड़ा बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो I will put in Hindi and English. और अगर बीच में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हाथ रेज करिए और मुझे पूछ लीजिए, because this session is for you, not for me. Okay? So what I believe is कि आज का सेशन जो है वो आपको already science student है आप. All of these are science students, right, ma'am? Yes, sir. Okay, science student hai. So definitely you all are having some dreams. Some of you are having that kind of thing कि अरे यार 11th पूरा वैसे ही pandemic में चला गया, 12th भी वैसे ही चला जाएगा, what to do, या किस तरह से मुझे motivation नहीं मिल रहा है, how do I handle everything? So we have a system to help you handle everything. Okay, तो किस तरह से करना है. Now 10th के लिए तो ये कैलकुलेशन आ गया कि 2 सेमेस्टर होगा. 12th CBSE के लिए भी वही कैलकुलेशन आना है. मैडम आ गया क्या 12th का? Yes, yes, sir. It has come. Yeah, so 2 board exams, 2 semesters. So your load is divided. The children who are going to be the students who are going to be consistent students, they will be good performers. And consistency in face of challenges. I just played one PowerPoint presentation about, and this, any challenge being an opportunity to grow to the next level of your competency. So when the going gets tough, the tough gets going. That's the idea. So
only 5% of the children, only 5% of the children will fight it out. You are very small percentage of 10th or 12th standard students. अगर आप पूरा कैलकुलेट करो कितने सारे स्टूडेंट्स है, you are not competing with your 10th standard, your 12th standard, your batch people. When you go into profession, you are competing with all the people who have been professionals before you, with 1 year of experience, 2 years of experience, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 years of experience, and you are a fresher. So you are competing with the person who is of 20 years of experience as well. And you are, after 2 years, you will be competing with a person who has 1 year of experience and who is a fresher. So you are getting into a pool where there are varied level of experienced people, but if you are a cut above the rest, you can beat them all hands down. The very same thing, ये opportunity लेकर के आप अपने operative practices को थोड़े change करो, adapt to the new normal, तो वो पूरा system जो है वो हम आपको देना चाहते हैं. And I want to appreciate and acknowledge the Matrix Academy management, Jaya ma'am, Seema ma'am, Jayanti ma'am, and teaching staff and non-teaching staff, specifically the teachers who are taking lot of efforts to learn the entire online digital stuff, and they have done good job of it. Yeah, because all the teachers are about 25, 30 plus, and according to you, we all are antique pieces, but the antique pieces are trying to cope up with you. So thank you all for joining on a Sunday morning, and I am going to make this 1.5 hours worth your while. And as I said कि अगर आपको कोई भी सवाल है तो 2 तरीका है. If the question is a general question, तो आप note down कीजिए. After the presentation, there will be a question answer session till all the questions are answered. I will be continuing that session. लेकिन अगर सेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ समझा नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ उसमें, या तो एग्री नहीं कर रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ उसको, तो आप इन द सेशन आप बोल दीजिए, तो एक फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड दिस इज एन ओरिएंटेशन. दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्कोर मोर प्रोग्राम, which is always sponsored by Matrix Academy. And the most primary step of score more or score more in exams or score more in life, primary step is goal setting. And goal setting is very easy, but when goal setting is with inner desire, it invokes motivation. When the goal setting is with inner desire, मांगता ही चमंगता है, यही चमंगता है, अभी चमंगता है, इतना ही चमंगता है, ऐसा ही चमंगता है, तो वो बम्बईया लैंग्वेज में बोले तो मांगता ही चमंगता है वाला डिजायर क्रिएट करने के लिए वो बैकग्राउंड ऑफ गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट. कोई बोल रहा है इसके लिए नहीं, आपको चाहिए इसके लिए गोल सेट करो. मम्मी पापा के संतोष के लिए नहीं, टीचर बोल रहे हैं इसके लिए नहीं. So that desire to do well, desire to produce excellence. Now, there are 2 aspects. Goal setting is like a success, and these 2 things are the ingredient of process. Process is equal to success. Success without the process is fluke. तो एक सिस्टम से अगर आपका पढ़ाई होता है, एक सिस्टम से अगर आप अपने आप को पढ़ाई में ढालते हो, तो वो एजुकेशन होता है. इट इज नॉट जस्ट स्टडीज, इट इज एजुकेशन. स्टडीज इज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, एंड एजुकेशन इंक्लूड्स स्टडी, बट एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड्स स्किल डेवलपमेंट. Education also includes personality development. Education also includes image management. Education also includes etiquettes and manners. So education is a way of life.
So if your way of life is consistently of excellence, you will be able to produce consistent results. So if we consider results as Mount Everest, we result and success as Mount Everest, climbing of the Mount Everest, winning the Mount Everest. The excellence is called Mount Neverest. So when you have the capacity to climb the Mount Neverest, like multiple Mount Everests, you will set the goals and achieve them. You will set the goals and achieve them, because life is all about setting short-term, long-term goals and breaking it down to daily goals. और daily goals को हम achieve करते जाए, that is going to happen, and cumulatively आपका short-term goal achieve होगा, that is a milestone, and then उसको और ज्यादा cumulative करेंगे तो स्टडीज का गोल अचीव होगा, और उसको और ज्यादा क्यूमुलेट करेंगे तो लाइफ का गोल अचीव होगा. सो प्रोसेस अगर परफेक्ट है तो कभी कभी मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन हमेशा सक्सेस की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे. सो दीज आर द टू पेरेंट्स ऑफ सक्सेस, टू पिलर्स ऑफ प्रोसेस, इन्वोकिंग मोटिवेशन एंड डिसिप्लिनरी डायरेक्शन. इन्वोकिंग मोटिवेशन का मतलब क्या है? अंदर से मोटिवेट होना, खुद के द्वारा मोटिवेट होना. सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, सो यू शुड बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन. मून इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. टीचर्स, पेरेंट्स, other your role models, these motivational seminars or the kind of workshops that I am doing, training programs that I do, trainers and coaches, they are external motivators. There is a saying that where there is a will, there is a way. That is a very true thing. Once you have the will, and if you are not able to find the way, we are the torchbearers for you. We are the guide for you. But if you don't want to go only, no matter how much we guide, where will you go? You will not be going anywhere, right? So you need to have invoked motivation, self-motivation, inspiration, desire, inner desire, that is invoking motivation. So today we are going to work on that. You are doing it, बट उसका एक सिस्टम है सोचने का, वो अगर आपके पास आ गया तो वो आप ऑन गोइंगली अलाइव रख सकते हैं. देखो, डिसिप्लिन है ना, वो एक थोड़ा सा गड़बड़ वाला वर्ड है. डिसिप्लिना, 4 लेटर वर्ड, राइट? नहीं है. डिसिप्लिन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डिसिप्लिनरी डायरेक्शन इज वेरी वेरी अचीवेबल. लाइक आपको पता है कि आपको 6 बजे पढ़ाई करने बैठ जाना है सवेरे उठ के, तो आपकी डिसिप्लिन क्या बोलती है? आप 5:30 बजे उठ जाओ, तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, नहा के आप पढ़ाई करने बैठ जाओ, राइट? सो व्हाट इज द डिसिप्लिनरी डायरेक्शन? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? डिसिप्लिनरी डायरेक्शन इन्वॉल्व्स प्लानिंग अकॉर्डिंग टू योर सेट गोल, and then doing a backward integration of that planning to put it in action. कि अगर आपको सवेरे 4 बजे उठना है तो रात को 10 बजे सो जाना है. अगर आपको सवेरे 5 बजे उठना है तो रात को आपको 10 बजे सो जाना है. अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हो तो आप सवेरे उठ के, जल्दी उठ के आप पढ़ाई कर पाओगे. इफ योर रेस्ट इज नॉट इनफ, सो डिसिप्लिनरी डायरेक्शन allows you to plan appropriately, act appropriately, behave appropriately, right? So these are the 2 pillars of the process. Self-motivation and self-discipline are 2 parents of success. So हमें सक्सेस के बारे में बात करनी है, हमें पेरेंट्स ऑफ सक्सेस के बारे में बात करनी है, और आपके पेरेंट्स का रोल क्या है उसके बारे में बात करनी है, राइट? आप बड़े हो गए हो, यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी कभी कभी मम्मी पापा बोलते हैं कि अभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए हो. आपके बच्चे हो जाएंगे तो भी आपके मम्मी पापा को आप में एक गैप दिखने वाला है. नाउ यू टेक इट एज अ फीडबैक, डोंट टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म. दे आर नॉट काउंसलर्स, दे आर नॉट कोचेस, दे आर पेरेंट्स. दे आर नॉट ट्रेन्ड टू मोटिवेट यू. दे आर, उनका इनर डिजायर है कि आप अपना अचीव करें, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट कैपेबिलिटी. सो उनका रोल भी हम मॉडरेट करेंगे,
Is there any child who has participated in our program when he or she was in Matrix Academy in class 10? Is there any student who was in Matrix and attended the session with us, Score More program, when he or she was in 10th? Nobody? I Okay. think Vilas was there. Vilas was not there. No, teacher. No, Okay. he was not there. So now the thing is, if anybody was there, he would have told you that there is a system and that system works. We are the glue to make sure that everything becomes perfect for you. We are a glue between the student and the parent, student and the study, student and the teacher, student and the school, the institute. So we are the glue. We don't teach you anything. We make you receptive. We make your parents little bit more collaborative. उनका moderation हो जाता है, उनका किट हम बंद करने की कोशिश करते हैं. Because all our sessions, we request the parents to be present. You are investing your valuable, you have already invested 1.5 years of your time in science stream, or 1 year now. Okay, 1.5 years. Abhi only 6 to 8 months are remaining for your board exams and your competitive exams. If at all you are trying, there are some students who are really very clear that they want to go for pure science and not this regular engineering and medicine stream or health science stream. No problem. This session is going to be useful for each and every one of you, right? So we are going to integrate everything, and everything is interconnected in this session. So let's go to the next. Now, the first and foremost thing about goal setting is that it is your choice. अगर आप चाहते हो तो आप कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको कितनी देर तक है ना, सपोज आपका मोबाइल जो है, मोबाइल उसका बैटरी खराब हो गया है, जब तक उसको कनेक्ट करके चार्जर के साथ में रखा हुआ है, it operates. But the moment you remove the charger, the mobile goes dead. It cannot be restarted. तो मोबाइल का जो यूज है, मोबाइल का नाम ही है कि इट इज मोबाइल फोन, जहां आप जाओ वहां लेके जा सकते हो. लेकिन अभी अगर उसको चार्जिंग कंटिन्यूअस चालू रखना पड़ेगा, कि लैपटॉप जो है, इट इज लैपटॉप. लैपटॉप इज व्हाट, आपके लैप पे रहे, आप कहाँ भी जाओ, आप अपने लैप पे ये करके आप अपना काम कर सकते हो. इट इज नॉट अ डेस्कटॉप. डेस्कटॉप इज अ स्टेशनरी थिंग. बट जो मोबाइल है उसका बैटरी खराब होता है तो उसको कांस्टेंट चार्जिंग की जरूरत है, राइट? तो अगर आपको कॉन्स्टेंटली किसी को बोलना पड़ रहा है कि आप करो करो करो, सो देन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. यू आर डिपेंडेंट ऑन कॉन्स्टेंट मोटिवेशन. हाँ, आपका जब भी चार्ज कम हो गया, आपका मोटिवेशन खत्म हो गया, आपको थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, तो यू गो एंड टॉक टू योर ट्रेनर, यू गो एंड टॉक टू योर कोच, योर पेरेंट और योर टीचर. तो दे चार्ज यू अप एंड देन यू स्टार्ट. तो वो वंस इन अ वाइल इज फाइन. लेकिन अगर ये चॉइस आपकी नहीं है और कोई बोले तभी आपको करना है, then it is very, very difficult to survive in this competitive world. Do as directed is done only by the peons and the clerks. The team leaders and the CEOs and design engineers cannot work with zero responsibility. उनका मन नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे. It is not about just marks. It is about your willingness to excel. So अगर आपकी चॉइस है, हाँ, आपको डिफिकल्टी आ रही है, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं जम रहा है, आपको पढ़ने का कंटाला आ रहा है, you have a doubt whether you have made a right choice by getting into science, one thing, keep it in mind, you have made the right choice by getting into science. At least you have not closed your doors to any field. अगर आपने PCM किया तो बायोलॉजी का फील्ड आपने क्लोज किया है, PCB किया है तो मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड आपने क्लोज किया, और अगर PCM भी है तो सारे फील्ड्स ओपन है. लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स आपके लिए अभी भी ओपन है. सो यू हैव नॉट मेड एनी रॉन्ग चॉइस. एटलीस्ट 11th and 12th साइंस विल मेक यू मोर लॉजिकल, make you more organized than you would have otherwise been in commerce and arts stream. Nothing wrong with commerce and arts, but you have come over here, you have not made any mistake. You can change the gear and move on to
BCA or BMS or BBA or BA after 12th. So don't even think. अभी जो भी है हाथ में है, 12th साइंस है, उसमें बेस्ट परफॉर्म करना है. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, उसमें बेस्ट परफॉर्म करना है. यू हैव मेड अ वाइज चॉइस, राइट चॉइस और रॉन्ग चॉइस नहीं. यू हैव नॉट क्लोज्ड ऑल द डोर्स. कॉमर्स और आर्ट्स के डोर्स आपने वैसे ही ओपन रखे हुए, साइंस के डोर्स भी ओपन है. सर्टन ब्यूटीफुल करियर्स require 11th and 12th science qualification. So you have made a right choice. Probably आपको लग रहा है कि मैं JEE का प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा कैपेसिटी नहीं है. We will resolve that doubts also. फिर मैं नीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं नीट कर पाऊंगा कि नहीं, should I go for physiotherapy, what is my second plan, third plan, fourth plan, सब हो जाएगा. सबसे पहले तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, whatever work you have taken in your hand, you give it 100% justice. वो कभी होगा जब भी आप उसको ओन अप करेंगे कि ओके आई वांट टू डू इट, आई वांट टू डू इट. तो वो सबसे पहला काम है, आई want to score 90% plus or 95% plus or top rank, A grade rank in my board exams and in my entrance exams, right? If you are pursuing NEET or JEE or CET and advanced JEE or NATA, probably your board exam marks will not count much, but then still if you have a good score in board exams, not just the bare minimum required for qualifying to get into engineering or medicine, your future prospects, post-graduation prospects are dependent to some extent on your 12th score as well, 10th score, 12th score and your degree. What is wrong? थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके आपका जितना टाइम JEE, CET और नीट जो भी आप पढ़ रहे हो, 3 में से या तीनों या 2, तो उसमें से जो भी टाइम बचता है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में डालो. आई हैव सीन वन स्टूडेंट गेटिंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम IIT because he got less than 40% in boards. वो टाइम पे the qualification in IIT was you should be in top 20% students of the relevant board. जो बोर्ड है उसके टॉप 20% में आपका रैंक आना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? सो वो डिस्क्वालीफाई हो गया. IIT मुंबई में उसका इंटरव्यू था एंड दे सेड आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, वी कांट गिव यू द एडमिशन बिकॉज यू डिस्क्वालीफाइड. सो वाइज चॉइस ये होगी कि जो भी है आपका उसको, और व्हेन यू टुक साइंस लाइन you knew that you have to put in extraordinary efforts. You have to give up on your extracurricular activities. अगर आप मेरे करियर गाइडेंस सेमिनार में आए तो ये साइंस स्टूडेंट को मैं हमेशा बोलता हूँ, छोड़ छाड़ के प्रीतम की गली अनारकली पढ़ने चली. सब कुछ छोड़ छाड़ के डिस्ट्रैक्शन की गली अनारकली पढ़ने चली. ना बर्थडे पार्टीज, no celebrations, no weddings, no movies. The first priority is the studies, and then every extra time you can enjoy. Every week you are able to get half a day off if you are doing proper due, and every day 1 hour of recreation time. Very, very doable for any 12th standard students. Even from now till the JEE mains, if you follow the instruction, you will get into IIT, that is my promise. You will get into NEET, that is my promise. But you will have to do what I say. I will not teach you. I will train you on your time management. I will train you on your constant motivation. I will train you on your operative practice, study habits, food habits, sleeping habits, stress management, anger management, emotion, everything. And I'm telling you, top rank is possible, and it is okay to have scored less till now.
अब तक आपको कम मार्क्स आए, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट इज इट योर चॉइस दैट यू वांट टू स्कोर 90% प्लस और 95% प्लस? देन आई कैन हेल्प यू. सो फर्स्ट स्टेप इज योर चॉइस. आप चाहते हो तो कर पाओगे, और वो आपको क्यों चाहना चाहिए, और आपका जो ड्रीम है वो कितना जोर से आपको भूख लगी है वो ड्रीम को अचीव करने की. यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, then only you will be self motivated in face of such pandemic situations. Only 5% of the students will rise above the rest. Would you be wanting to be in that 5% in during this pandemic situation? It will make you strong. It will give you the sense of accomplishment like never before, like no one had before, because ये प्रकार का situation consistently for 1 year and 6 months, boss 3-4 months already, and now no end in sight. Boss, hats off to you people, and my all the sensitivity is with you. But life is very fair. You have to rise above the rest to be the leader of the pack. There was a student last year he was in 10th. Last 3 years back he was in 10th, and last year, not this year, 12th pass out, he passed out in 12th last year during pandemic, जब ये सब लटक रहा था, first wave. He had scored 98% in his 10th CBSE board. बोरीवली में रहता था, MKVBIV का student, brilliant student. I am still proud of him. But what happened during pandemic? He was a topper in JEE. वो entrance के classes उसने join किए थे, and he was a topper throughout. It was taken for granted that he will be in top 500. During pandemic, he became, अभी क्या करना है, अभी कंटाल गया हूँ, मेरा हो गया है problem. And a very same group, another student, he had scored only 80% in 10th, and he was thinking कि मेरा तो JEE गया. जब भी पैंडेमिक चालू हुआ और अनसर्टेनिटी चालू हुआ, उसके दिमाग में आया कि अभी मैं थोड़ा मेहनत कर सकता हूँ. He took my coaching and he started putting in efforts. He turned out to be in top 500, and this fellow got 30,000 rank. Luckily, he did well in his BITS Pilani. Now he got into BITS Pilani computer science, what he wanted. But if he had not got into it, because his CET was also pathetic, luckily he got in BITS Pilani in the management quota. Right? So what is the difference? The person who was resilient overtook a lot of his contemporaries because he did not leave his efforts. He put in his 100% at that time, even when it was not possible. So once again, अगर आप दिल में लेते हो, अगर कोई बंदा 4 महीने के पैंडेमिक सिचुएशन में IIT JEE मेंस पहले वाले में भी क्लियर हो गया था, but his rank was very low. This fellow was in top 100 in JEE mains, first and second both. What is the moral of the story? It is never too late. Number 2, if you give your 100%, nobody can stop you from achieving what you want. It is okay to have scored less till now. I want to score 90% plus. I want to score top ranks, but my concerns, memory, concentration, consistency in that, okay? It's not that you can't memorize and you can't, consistency nahi hai. Time management, confidence, overconfidence. In some of the cases when you make silly mistakes is because of overconfidence, that you आपने overconfidence में last minute में preparation नहीं किया. Exam fear. Some of the people are afraid कि एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, एग्जाम के लिए थोड़े डर जाते हैं, एग्जाम के टाइम पे नर्वसनेस आ जाती है. लेजीनेस
is the biggest pandemic. It is a bigger pandemic than the corona itself. कोरोना तो बॉडी को टच करता है, लेजीनेस पूरे लाइफ को टच कर देता है. लेजीनेस आपके ब्रेन को टच कर देता है. इनफैक्ट ब्रेन इज द लेजीएस्ट ऑर्गन in our body. Given a choice, the brain would not like to work. But once the brain starts working, it doesn't need to stop. Brain has got that much energy that it doesn't need to be lazy. But it is lazy by nature. So we need to keep on stimulating it through our purpose, through our vision, through our goals, through our desires, through our self-discipline, through our habits. Gadget management. दिल ने पुकारा और हम चले आए, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम को खोल के बैठ गए, यूट्यूब को देख के. हाँ, देर आर सर्टन स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज विच आर वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी इफेक्टिव, बट आर दे योर प्रायोरिटी? आई एम नॉट सेइंग दैट यूट्यूब पे वीडियो देखना खराब है, और आप अच्छे वीडियो देखते हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हो, एजुकेशन के वीडियो देखते हो, नथिंग रॉन्ग, राइट. बट उसका भी एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा. तो गैजेट मैनेजमेंट डजंट मीन दैट आपको गेम्स कितना खेलना है वो मैनेजमेंट. आपको अपना टाइम, जो आपकी पेन एंड पेपर स्टडीज है, जो आपकी टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज है, उसको छोड़ के अपना टाइम, मैंने टाइम के सेक्रीफाइस करके गैजेट के अंदर घुसते हो. दैट इज द प्रॉब्लम. सो गैजेट मैनेजमेंट इज one of the keys along with laziness, because gadget में क्या होता है कि when you are watching a video or you are seeing a meme, you are practically not putting in efforts to understand it, because you know that इसका recording आप वापस से देख सकते हो. तो even the lecture which is live is always more productive than the lecture that you are watching recorded, क्योंकि आपको पता है बाद में देख सकते हैं. जबकि लाइव जो है उसमें तो कंसंट्रेशन करना है, राइट. लाइव में लाइव इंटरेक्शन भी होता है, नथिंग रॉन्ग. बट जब भी कोई आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तो वो आपको देखना है वीडियो, बट वो सिलेक्टेड वीडियो देखो, बिकॉज द ब्रेन लाइक्स टू सी द वीडियो, बिकॉज उसमें देयर इज नो वर्क द ब्रेन हैज टू डू टू मच, राइट. अच्छा, अगर आप एजुकेशन के स्टडीज के रिलेटेड वीडियो देखते हो तो एक अच्छा ऑपरेटिव प्रैक्टिस है, पेपर और पेन साथ में रखो, नोटबुक और पेन साथ में रखो, कीप नोटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉज करो, पॉइंट करो. सर बोलते हैं कि भाई यू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू ड्रॉ इट, और व्हेन द सर इज एक्सप्लेनिंग इट ऑन द बोर्ड, आपकी टेक्स्ट बुक खोल के देखो कि व्हाट इज इट, हाउ इट इज रिलेवेंट. देन यू वुड नो दैट वो 30 मिनट का वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव था कि नहीं था. देन यू विल बी एबल टू जज, to prioritize the video watching. So I'm not saying that gadget is always for bad. Okay, TV is always for bad. But if it is distracting you, if it is wasting your time, if it is slowing down your studies, if it is reducing your concentration, then we need to do something about it. Because after watching TV, when you sit for studying, there is a hangover of that. After watching a video, when you sit for studying, there is a hangover of that. So we have a system to take that hangover out. I'm not saying कि 15 मिनट में आप एंजॉय मत करो, जो ब्रेक लिया है आधे घंटे का उसमें आप एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, बट दैट एंजॉयमेंट इज स्पिलिंग ओवर टू स्टडीज. फैंटेसी 30 मिनट्स में कितना काम कर लेते हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियंस. फैंटेसी से आप रियलिटी में आते हो, गेम खेलते हो मोबाइल पे, तो फैंटेसी से रियलिटी में आने में, और रियलिटी में क्या होता है, 3 घंटे में तो पूरा मूवी देख लो, तो बच्चा पैदा होके बड़ा होके उसका माँ बाप का बदला लेके हीरोइन के साथ में गाना गा के शादी करके उसको भी बच्चा हो जाता है 3 घंटे में. 3 घंटे में अपना एक चैप्टर नहीं होता है. सो दैट स्पीड, दैट फैंटेसी टू रियलिटी, और वो गाना गाए, उसका बच्चा होवे ना होवे, उसकी शादी होवे ना होवे, वो विलन को मार सके ना मार सके, आपको कुछ ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है. देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ऑन यू. सो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है आपको. लेकिन पढ़ाई में तो आप जो पढ़ रहे हो, वो जयंती मैडम का जो टेस्ट है उसमें आपको रिस्पॉन्स करना है, राइट. जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें आपको लिखना है. सो देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर एंड कॉन्सेंट्रेट एंड नॉट मिस.
सो आपका जो कंसंट्रेशन है वो गैजेट के साथ में, डायरेक्ट गैजेट के यूज की वजह से आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, तो उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग गैजेट के बगैर जिंदगी नहीं है, अभी आप गैजेट है तो हम हैं अभी बात कर रहे हैं। स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस इज देयर, हार्मोनल चेंजेस आपके पीक पे होते हैं। फिर एक तो करियर का स्ट्रेस है, ये ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रेस है, आपको कहीं फिजिकल मूवमेंट इतनी नहीं हो रही है उसका स्ट्रेस है, फ्रेंड्स के साथ में बात नहीं कर पाते हो फिजिकली पर्सनली मिलके, स्कूल में नहीं जाते हो, देयर इज अ पर्टिकुलर वे यू हैव बीन यूज्ड टू स्टडी for 12 to 13 years of your life. Now last 1 year you are forced to do something else, तो उसका stress है. I completely agree to that, but we need to handle it. Stress is not what happens, stress is happening because how we handle what happens. अभी वो situation है, change है, आप resist करोगे तो तकलीफ होगी. फिर डिसिप्लिन, नक्की करते हो कि आपको करना है लेकिन कर नहीं पाते हो. स्लीपिंग हैबिट्स, आपको पता है कि आपको सवेरे उठ के पढ़ाई करनी अच्छी है लेकिन वो नहीं चेंज कर पाते हो. पूरा दिन जागने के बाद में या तो थोड़ा बहुत आराम करने के बाद में रात को आपका पढ़ाई अच्छा होता है. आई वुड लाइक यू टू कंसिडर समथिंग कि टू चेंज द स्लीप साइकिल, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वर्किंग ड्यूरिंग द डे टाइम in your entire life. If you set up this wrong cycle, it would be difficult on your health later on. Then you will have to sleep in the night and wake up in the morning. So थोड़े उम्र होने के बाद में वो चेंज होना मुश्किल हो जाता है. तो स्लीपिंग हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शंस, हैंडराइटिंग, राइटिंग स्पीड, लॉन्ग आंसर्स, सिली मिस्टेक्स, media impact, eating habits, anger, friends, parties and lack of it, etc. पेरेंट्स के कंसर्न है, मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स ला सकता है लेकिन सुनता नहीं, समझता नहीं. बच्चा बोलता है मम्मा पहले बात तो सुन लो पूरी, पापा पहले बात तो सुन लो पूरी, पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब बच्चा भी सोचता है कि मेरा मम्मी पापा सुनते नहीं, समझते नहीं. गुड न्यूज़ है कि मम्मी पापा भी सुनते समझते हैं, बच्चे भी सुनते समझते हैं. आपने अपने बच्चे को अच्छा बड़ा किया है. बच्चे लोग, आप अपने मम्मी पापा को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप सुनते भी हो, समझते भी हो, लेकिन मानते नहीं हो, क्योंकि टुडेज जनरेशन इज अबाउट वाई. अगर वाई अगर सही तरीके से नहीं बताया तो आपको मानना मुश्किल हो जाता है. सो हम आपको वाई समझाते हैं जो आपके मम्मी पापा अच्छी तरह से नहीं समझा पाते हैं क्योंकि वो काउंसलर नहीं है. सो गुड न्यूज़ इज आपके मम्मी पापा जो है, जो चीज़ का वाई आपको नहीं समझा पाते हैं वो हम समझाएंगे, और जो चीज़ आपको करनी है उसका कॉन्सिक्वेंस खराब आएगा. व्हाट इफ्स, मम्मी पापा को व्हाट इफ है, व्हाट इफ ये तकलीफ होगी मेरे बच्चे को, तो वो आपको ना बोलते हैं. तो उनको लगता है कि बच्चे को पता नहीं है, सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सही है. सो दे हैव देयर ओन वेज. सो व्हाट हैपेंस इज, और मम्मी पापा को मैं जब भी पूछा ना कि आपका बच्चा अगर अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही टाइम पे कर लेता है तो वो थोड़ा टाइम पास करे तो आपको क्या प्रॉब्लम है. तो मम्मी पापा बोलते हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आपका पढ़ाई ट्रैक पे आ गया, फिर आप संडे फुल डे एंजॉय करो या तो हाफ अ डे एंजॉय करो, क्योंकि साइंस में गए तो संडे फुल डे में तो वो टीचर लोग, ट्यूशन वाले तो पागल हो जाते हैं, उनको आपका टेस्ट लेना ही लेना होता है. फिजिक्स वाले लेंगे, केमिस्ट्री वाले लेंगे, मैथ्स वाले लेंगे, बायोलॉजी वाले लेंगे. बच्चे की तो शामत आ जाएगी. फिजिक्स का टेस्ट हो गया, 1 घंटे के बाद में केमिस्ट्री का टेस्ट, केमिस्ट्री का टेस्ट हो गया, एंड दे से दैट अभी सीईटी जेडब्ल्यू में तीनों साथ में तो पढ़ना ही है, तो हैबिट नहीं डालेगा तो कैसे चलेगा. सो वो टेस्ट दोपहर तक खत्म हो गया, बाद में तो आप एंजॉय कर सकते हो. दिस इज व्हाट I can tell you, and your parents will be too happy. Parents are also too concerned कि बच्चा पागल हो जाएगा इतना पढ़ के. हाँ, तैयारी के साथ में गए हो, लेकिन अगर आप सिस्टम से करोगे तो जितना आप एफर्ट अभी डाल रहे हो उसमें आपका परफॉर्मेंस हाई हो जाएगा. 7 मार्क्स आउट ऑफ 80 लाने वाला 10th स्टैंडर्ड का बच्चा प्रीलिम्स में 7 आउट ऑफ 80 लाया था आईसीएसई बोर्ड में, वो 97 on 100 लेके आता है 2 महीने के सिस्टम से.
58% से 92% पे जाता है, और वही सिस्टम उसने कंसिस्टेंटली आगे पढ़ाई किया। एक ADHD चाइल्ड अपना नीट क्रैक करके KEM से, GS मेडिकल कॉलेज से वो MBBS खत्म करके अभी GS मेडिकल कॉलेज में ही जनरल मेडिसिन में MD कर रहा है, खाली यही सिस्टम फॉलो करके, स्कोर मोर प्रोग्राम की। ADHD चाइल्ड, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? सो इट इज वेरी इजी। अगर आप अपना पढ़ाई बराबर कर रहे हो तो आप एंजॉय करते करते डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी बनना है, साइंटिस्ट या मैनेजमेंट ग्रेजुएट बन सकते हो। दिस 10 years और 7 years ऑफ योर लाइफ, 7 to 8 to 9 to 10 years आप मुझे दे दो, मुझे मतलब सिस्टम को, वो सिस्टम में आपको सिखा दूंगा। एक ही बार आना है मेरे पास सिस्टम सीखना, राइट? फूड हैबिट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बच्चे लोग सवेरे सवेरे उठते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं और पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। अरे बाबा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरोगे तो कैसे चलेगा? एवरी साइंस सेज दैट यू हैव अ ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, lunch like a common man, and dinner like a miser. Every science, you give me one person who says that breakfast mat khao, but most of the kids skip breakfast क्योंकि उनको अपनी नींद ज्यादा प्यारी है। क्योंकि वो ब्रेकफास्ट खाना है तो 15-20 मिनट का गैप रखना पड़ेगा, वो तो भाग के स्कूल में पहुंचते हैं, भाग पे लॉग इन करते हैं। असेंबली के टाइम पे वीडियो क्यों ऑन नहीं रहता है? क्योंकि बच्चा तैयारी नहीं हुआ है, वो ऐसे ही बैठा हुआ है। असेंबली के बाद में ब्रेक होता है, फटाफट डाल लेता है और कपड़ा पहन के बैठ जाता है। वो मुझे पता है, मेरा बेटा भी 10th स्टैंडर्ड में, मुझे पता है, राइट? तो फूड हैबिट्स आपकी डेवलप करनी पड़ेगी। और मम्मी पापा को ये कंप्लेन है कि आप बराबर खाते नहीं हो, लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं। स्लीपिंग हैबिट्स, मम्मी पापा बोलते हैं रात को सोता नहीं, सवेरे उठता नहीं, टाइम पे सोता नहीं, टाइम पे उठता नहीं। स्टडी हैबिट्स, लेट के पढ़ता है, प्रैक्टिस नहीं करता है। केमिस्ट्री ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, हम ऐसे नहीं पढ़े थे। तो बच्चा बोलता है पापा आप एंटीक पीस हो, आपके टाइम पे नीट नहीं था, आपके टाइम पे PCB का मार्क्स काउंट होके आप चले गए, आपको नहीं पता है मेरे को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। स्टडी हैबिट्स। मैथ्स, कोई छत्रपति होते हैं मैथ्स पढ़ के करते हैं, जबकि मम्मी पापा अलीबाग से नहीं आए हैं, उनको पता है कि मैथ्स तो लिख के ही होता है। लेकिन बच्चा सोचता है कि इतना ज्यादा, जो इतने ज्यादा सम्स है वो सारे में कैसे लिख के प्रैक्टिस करूं? तो कौन से वाले सम सिलेक्टेड करने हैं, किस तरह से करने हैं, वो सब सिखाना जरूरी होता है। नॉट ऑर्गेनाइज्ड, चीज ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, इधर उधर रख देता है। अभी तो स्कूल में भी नहीं जाना है, फिर भी उसकी चीज ठिकाने पे नहीं रखता है। लेकिन मम्मी पापा, मैं आपको बताऊंगा, बच्चे लोग फ्रस्ट्रेटेड है, थक गए, कंटाला आता है। जैसे ही ऑनलाइन क्लास बंद हो जाता है, किसी को ऑनलाइन की वजह से आंख को तकलीफ होती है, किसी को सर दर्द कर रहा है, किसी का बॉडी एक हो रहा है, किसी को एनर्जी ड्रेन आउट होती है। सबका अपना अपना एक लिमिटेशन है। तो वो तो राह देखते हैं कि कभी मैं लॉग आउट करूं और कभी मैं निकलूं यहाँ से। तो वो जब भी वो टाइम पे उसको माताजी आते हैं, किधर भी चले जाते हैं बच्चे, तो उनका ध्यान नहीं रहता है। क्या बड़ी बात है, आपका ही बच्चा है ना, जब भी छोटा था तो उसका डायपर चेंज करते थे ना, वो अगर किधर भी छीछी पीपी कर देता था तो वो साफ सफाई कर देते थे आप। उसको खाना नहीं रहता था तो आप उसको पेशेंटली समझा के उसको खिला देते थे। वो सब काम मैं करूँगा, लेकिन आपको एक काम करना है कि उसके साथ में बैठ के उसकी सारी नोट्स, सारी बुक्स, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, सारे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पैड्स, वो जो भी है, टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, पैम्पलेट्स, फाइल्स, सब चीज किधर कौन सी कहाँ रखनी है, वो बच्चे के साथ में बैठ के नक्की करो। बच्चा आड़ा टेढ़ा छोड़ के गया, आप 2 मिनट में ठीक कर दोगे। आपकी सास के बच्चे को तो ध्यान रखते हो ना इतना, रोज पूछता है कि मेरा रुमाल किधर है, मेरा सॉक्स किधर है, मेरी घड़ी किधर है, राइट? तो इसको भी उसका सब कुछ ठिकाने पे रखो। वो मार्क्स कमाने के लिए आ रहा है, जो आपकी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की जिंदगी के लिए कर रहे हो, पैसा, समय, एफर्ट सब डाल रहे हो, तो आप थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज होने के लिए तैयार कर दो। हेल्प हिम ऑर्गेनाइज हिज स्टडीज, स्टडी मटेरियल, उसकी चीजें आप ठिकाने पे रख दो। थोड़े थोड़ा धीरे धीरे उसको खुद को
वो चीज अच्छी लगने लगेगी और फिर अपने आप वो करने लगेगा। अरे बाबा हैबिट पड़ जाएगी, अपना आगे करेगा, सोच लेगा वो। अभी उसको उसकी ये डिसऑर्गेनाइज्ड वे की वजह से उसको किटकिट मत करो। बच्चे लोग, आपके मम्मी पापा आपको किटकिट नहीं करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी चीज ठिकाने पे रखने के लिए। 5 मिनट में कोई आपका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आपके लाइफ बच्चे को एक हैबिट पड़ जाएगी, धीरे धीरे पड़ेगी। अपने आप नहीं रखता है तो उसको अच्छी चीज सामने दिखेगी तो वैसे ही रखने की उसको लालच होगी। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सब कुछ बोलना पड़ता है, वो हो जाएगा। ओके, नॉट रिस्पॉन्सिबल एटसेट्रा, ये सारे कंसर्न्स पेरेंट्स के हैं। आप बोल रहे हो कि अरे यार ये गोल सेटिंग वगैरह की, ये कंसर्न्स के साथ साथ में मैं आपको थोड़े थोड़े सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ। दैट इज द सेमिनार लाइक। ओके, बाद में मैं पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको सेल्फ मोटिवेशन और मोटिवेशन का पूरा पाथवे दे रहा हूँ। अभी पेंडेमिक के कंसर्न है, नो फिजिकल स्कूल, नो आउटिंग्स, नो कैजुअल हैंगआउट्स, पर्सनल मीट्स विद फ्रेंड्स आर मिसिंग, इरिटेशन आ रहा है बच्चों को, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, एक ही घर में 3-4 जन है, राइट। स्कूल में तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख भी सकते हैं, क्लास में इधर उधर देखा तो मम्मी बोलती है ध्यान दे ध्यान दे। उतना ध्यान तो फिजिकल स्कूल में भी नहीं होता था। न्यू वे ऑफ लाइफ हो गया, राइट। पापा भी घर पे, मम्मी भी घर पे, राइट। और फियर, एंजाइटी, कल क्या होगा, कुछ नया नया फॉर्मूला हर बार आता है। और आपने जो नक्की किया था ना कि मैं बोर्ड एग्जाम का लास्ट में पढ़ लूंगा, जनवरी महीने से जनवरी फरवरी में, वो अभी आपको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। सो न्यू रूल्स आ गए ना, यू विल हैव टू अडॉप्ट टू द न्यू रूल्स। एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, पैंडेमिक इज रियल एंड इट इज हियर। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। इजियर सेड देन डन। बहुत इजी है मेरे लिए बोलना, आपके लिए बोलना, लेकिन करना डिफिकल्ट है। इसके लिए हमारी माइक्रो हैबिट्स आपको काम में आती है। इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट लाइफ। लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई, लाइफ भी चेंज हो गई, अनसर्टनिटी बहुत है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पापा के जॉब की अनसर्टनिटी है, पापा के बिजनेस की अनसर्टनिटी है, प्रोफेशन की अनसर्टनिटी है, पता नहीं है क्या होना है। नया नॉर्मल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इट इज रियल, somebody has to give you guideline. Uncertain timeline, sudden changes, new procedures and new rules. Every now and then some updates come up. Online classes, difficult to concentrate and to remain motivated. मुझे सब पता है. At the same time, on-time completion of assignments is equally important. कैसे ये सब मैनेज करना? ट्यूशंस, क्लासेस, होमवर्क, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? न्यू स्टडी हैबिट्स टू बी डेवलप्ड, फाइटिंग लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑनलाइन है ना सब कुछ, तो सब लेजीनेस है, सब प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत अच्छा रीजन मिल जाता है, मैम मेरा गैजेट खराब हुआ है, मेरा कैमरा खराब है, मेरा माइक खराब है, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, इंटरनेट नहीं था, लाइट नहीं था। और आप जो एरिया में रहते हो वहां पे तो रियल एंड जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। मौका मिला तो चौका मार दिया, अभी सब नहीं है, अभी लाइट नहीं है तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ, व्हाटएवर। तो इजीली प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है, इजीली लेजीनेस हो रहा है। लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन आर पेरेंट्स ऑफ फेलियर। आपके पास एक मौका है, सक्सेस के पेरेंट्स को एडॉप्ट करो। दिस इज द टाइम फॉर यू टू एडॉप्ट द पेरेंट्स ऑफ योर सक्सेस एंड पेरेंट्स ऑफ योर फेलियर टू अचीव योर पोटेंशियल. Laziness and procrastination will deliver failure. Self-motivation and self-discipline will deliver success. ऑनलाइन क्लासरूम का एटिकेट्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, मैंने एक छोटी सी बात कही इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. स्टिल देयर वर सो मेनी कैमरास which were off. I understand probably you were not, I understand probably you were not very prepared for the cameras to be on. You didn't want to look bad, fine. But from tomorrow, my suggestion is for your own self, for your own good, please keep your cameras on. जो 30 minutes 40 minutes आप ऑनलाइन हो, सी
you can do the self study and learn. कैमरा ऑन रखते हैं तो जो 30 मिनट आप अटेंड कर रहे हो उसमें फ्री का एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाता है. डिस्ट्रैक्शंस इन ऑनलाइन क्लासरूम आर देयर, हाउ टू हैंडल देम. तो ये सारी चीजें हम आपको बताना चाहते हैं इन कैप्सूल्स ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, फर्दर ट्रेनिंग. अभी now let's get to the goal setting part. With this background and with this preparation, you all want to be highly successful in life. What is one unique and common characteristic of highly successful individuals? They all are smart. All the highly successful individuals are smart, and smartness is there is existing in the brain. Smart brain development. How can we do it in a quick and efficient manner? The way to do it, with an example, I'll tell you. If you want a smart body, you need to go to the gym, listen to the instructor, follow the instructions, and you need to follow the diet suggested by the gym dietitian, or you have subscribed a dietitian, and then dietitian will tell you in consultation with your physical trainer what to eat and what not to eat and when to eat. If you want a smart brain, you have to go to the brain gym and brain diet. Brain gym is the school and your home, and the instructors are your teachers and your parents and trainers like me. And brain diet is the thought processes which come through your experiences in lectures, in life, in your family, with your friends. That is your brain diet. And score more program. अच्छा, brain gym में क्या है? Equipments क्या है? Notes है, lectures है. These are all equipments. Exercises क्या है? Exams are the equipments. Exam देते हो, that is the exercise. Lecture सुनते हो, that is the exercise. Homework करते हो, that is the exercise. Using these exercises, you are making your brain smart. If you avoid certain exercise the way you avoid certain exercise in the physical जिम, फिजिक के जिम में अगर आप कोई एक्सरसाइज मिस करते हो, एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते हो, लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि लेफ्ट हैंड वीक है, राइट? इफ द लेफ्ट हैंड इज वीक एंड यू आर नॉट डूइंग द लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज, देन व्हाट विल हैपन? पूरा बॉडी सलमान खान, लेफ्ट हैंड ऐश्वर्या राय. नहीं चलेगा. इट विल नॉट बी स्मार्ट एनीमोर, राइट? Very same way, the difficult chapters also need to do justice to. You need to do justice to difficult chapters, all the more so that that part of your brain becomes smarter than what it is right now. The other parts are smart. It's like left hand of your brain if you avoid it. So we have to create ideas and things for effective studies, that we do it in Score More program. And most important, we have observed that a happy student is most successful student. Happy student finds it easy to excel in his studies. Happy student doesn't have study as a burden. Feeling good about studies, being happy, yeah, and at the same time performing well day after day. Let us look at the choices we have in why to study now. चलो देखते हैं. Happiness, joy, satisfaction, respect and status and success and money that you want for the rest of your life. उसमें choices है. A grade Mercedes और BMW लेवल की choice है. B grade मारुति नैनो. C grade साइकिल. D grade पैदल. E grade हाथ गाड़ी चलाने वाला. F grade कुली and G grade beggar. Which grade of life? All of them live. सब लोग जिंदा है. ए ग्रेड के भी इंजीनियर है, बी ग्रेड के भी इंजीनियर है. लोग बोलते हैं कि अभी आजकल इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं. बहुत वैल्यू है इंजीनियरिंग की, बहुत वैल्यू है इंजीनियरिंग की, लेकिन अच्छे इंजीनियर ही नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट ए ग्रेड इंजीनियर्स, बी ग्रेड इंजीनियर, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड, सब में ग्रेड है. सो आपको कौन से ग्रेड का इंजीनियर बनना है? आपके मम्मी पापा मानते हैं, जानते हैं, एक्चुअली कमिटेड है कि आप का कैपेसिटी ए ग्रेड है, लेकिन आप बी ग्रेड में घूम रहे हो, सी ग्रेड में घूम रहे हो, तो उनको दुख होता है. और उनको ये भी पता है कि सी ग्रेड वाली लाइफ आपको नहीं हजम होने वाली है. बैलेंस वाली, बजट वाली लाइफ वो इनटॉलरेबल है आपके लिए.
मम्मी पापा बहुत सारी जिंदगी उनके संजोग की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज कम थी या तो नहीं थी या तो थी लेकिन वो नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द फैमिली और whatever their health issue or the family issue. Most of the parents, middle class family, they are living a cycle वाली जिंदगी, बैलेंस वाली जिंदगी, बजट वाली जिंदगी. उनको पता है बच्चा नहीं सहन कर पाएगा, बी ग्रेड एंड ए ग्रेड में जाना है बच्चे को. Consider the following scenario. You got 90% in your boards if you are going in for pure science or A grade rank in JEE, CET or NEET. क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. With that confidence you will get into A grade college of your choice. What are the advantages of getting into an A grade college? Just check it out, okay? Friends, everybody of one level. Faculty, top of the line. External faculty, top of the line. Facility, every facility would be available in that institute. Environment, everybody would be looking at future in a different way, in various excellence they want to produce in some areas. Competition is too much. Even if you don't feel like studying because of the environment and competition, you get energized. The ex-student of that institute are at the top level in various industries or various hospitals when you talk about doctors. वो आपको सपोर्ट करेंगे. वो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, अपने बच्चे हैं. अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी ए ग्रेड कॉलेज में, एक्सपोजर बहुत मिलता है ए ग्रेड कॉलेज में. चेक इट आउट, दिस आर द एडवांटेजेस. अगर कम मार्क्स आ गए, अच्छा ए ग्रेड कॉलेज से आप ए ग्रेड कंपनी या ए ग्रेड हॉस्पिटल में जाओगे. ए ग्रेड हॉस्पिटल्स विल टॉप ग्रेड की पोस्ट के लिए वो मेडिकल ऑफिसर्स कहाँ से लेंगे? टॉप की कॉलेज से लेंगे. वैसे ही इंडस्ट्री में भी ए ग्रेड कंपनीज विल गो टू ओनली ए ग्रेड कॉलेजेस फॉर ए ग्रेड जॉब ओपनिंग्स. ए ग्रेड जॉब, ए ग्रेड सैलरी, ए ग्रेड ग्रोथ, ए ग्रेड लाइफ. यू गेट इट, आई एम टेलिंग यू, यू बेटर गेट इट. और अभी कनेक्शन देता हूँ, अगर आपको ए ग्रेड लाइफ जीनी है और आप बी ग्रेड मार्क्स लेके आते हो, बी ग्रेड रैंक आ जाती है, तो गेट इनटू बी ग्रेड कॉलेज. कॉन्फिडेंस भी बी ग्रेड, बाकी सारी चीज़ें बी ग्रेड रहेगी. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट away from B grade to A grade. How easy it is? देखो 90% प्लस आया या तो A grade रैंक आई, you go to A grade सीनियर कॉलेज, वहाँ से A grade पोस्ट ग्रेजुएशन, A grade कंपनी और हॉस्पिटल, A grade लाइफ. You got less marks, you will definitely not get into an A grade engineering और मेडिकल कॉलेज और आर्किटेक्चर कॉलेज. B grade सीनियर कॉलेज में जाओगे, वहाँ से A grade PG का वापस से प्रॉब्लम है because you are competing with these people who are equipped with so many facilities and so many positive points. They are in the environment of competition. यहाँ पे इतना ज़्यादा competition नहीं है because there are some people who have just been lazy like you at times. इसके लिए B grade senior और circumstantial. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतना करने के बाद में भी probably you were not well at the time of your exams etc. That's pure luck, bad luck. But otherwise, but those people even in the senior college they are the toppers and they will get into A grade. But generally B grade में जाने के responsibility आपकी ही है. और अगर आप अभी laziness और procrastination करोगे तो you will deliver B grade और C grade marks and will go to B grade और C grade senior college. वहाँ से A grade में जाना बहुत मुश्किल है. You will go to B grade. B grade से A grade कंपनी या हॉस्पिटल में मिलना मुश्किल है, तो B grade हॉस्पिटल या कंपनी में जाओगे. आपको जाना है ए ग्रेड लाइफ में, बी ग्रेड में. यू नो दैट यू कैन डू इट, बट आपने गलत माँ बाप को अडॉप्ट किया, फेल्यूर के माँ बाप को अडॉप्ट किया. तो फेल्यूर इन द सेंस फेल्यूर टू बी इन ए ग्रेड. तो आप यहाँ पर या सी ग्रेड या डी ग्रेड में हो, विल नॉट बी हैप्पी. हैप्पीनेस तो ए ग्रेड चाहिए, पैसा बी ग्रेड चलता है एक बार. एंड देन बी ग्रेड टू ए ग्रेड जाने में भी बहुत, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो एक तो कंपनी कम है और लोग रिटायर होने तक जगह खाली नहीं होती है, right? I have seen in some schools the principal is there for a long time because she has or he has yet to have too many years, and then उसके जो एक साल छोटे हैं उससे उम्र में, वो राह देखते हैं वो रिटायर होने के लिए. देन एक साल के लिए वो प्रिंसिपल बनते हैं.
Young principals last longer. Okay. So replacement बहुत difficult है B2A जाना. वैसे ही हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में वैसे ही है. तो B grade life. Where is the easiest entry in A grade life? A grade company. Easiest entry A grade. A grade. यहाँ पर next 300 days, 400 days, 300 days will determine your destiny. क्योंकि अगर यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ जाना मुश्किल ही होना है, नामुमकिन नहीं है. तो why wait for a 4-year grind of senior college to go into A grade? अब भी कर लो ग्राइंड, बाद में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. हाँ, फिर 4 साल पढ़ना पड़ेगा ऐसा मजबूत. And that too with not that much of support from your infrastructure. तो easiest entry A grade life में कहाँ है? यहाँ है. Consider this as a preparation for a picnic called life. 25 साल आप प्रिपरेशन करो, अभी 15-17 साल तो हो गए, 17 साल तो हो गए, 17 साल का प्रिपरेशन हो गया, 8 या 10 साल बाकी है. वो अगर आप सही तरीके से कर दो तो रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल हैव टू वर्क. अ मैनेजर ऑल्सो वर्क्स, सीनियर इंजीनियर ऑल्सो वर्क्स एंड अ जूनियर इंजीनियर ऑल्सो वर्क्स. दोनों भी जन काम करते हैं. B grade engineer also works. A company में manager also works and a peon also works and a clerk also works. लेकिन सबकी सैलरी में कितना फर्क है? पियून को 10,000 मिलता है, क्लर्क को 50,000 मिलता है और मैनेजर को 2-3 लाख रुपया मिलता है. काम सब लोग उतना ही करते हैं. ज्यादा, सबसे ज्यादा हार्डवर्क तो क्लर्क और पियून करते हैं. एवरेज पियून से ज्यादा काम क्लर्क करता है. पियून को तो जो बोला जाए वही करना है, जबकि क्लर्क को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक काम दिया गया है वो कंप्लीट करना ही है. राइट? और क्या डिफरेंस था? 5 मार्क का डिफरेंस था कि वो क्लर्क बन गया, वो उसको MBA में एडमिशन नहीं मिला, तो उसने खाली कुछ तो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया और फिर ही इज अ जूनियर एंड ही विल रिमेन जूनियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अनफॉर्चुनेटली. बेटर द प्रिपरेशन, बेटर विल बी लाइफ. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं. ये आपकी आंखें खोलने के लिए सेशन है. आप जागरूक हो जाओ. आपके हाथ में अभी कोई दूसरी जवाबदारी नहीं है. ना खाने की चिंता करनी है, ना फीस की चिंता करनी है, ना कमाने की चिंता करनी है, ना खाना बनाने की चिंता करनी है. आपको खाली अपना पिकनिक प्लान करना है. लाइफ लॉन्ग पिकनिक प्लान करना है. एक दिन की पिकनिक के लिए 10 दिन का प्रिपरेशन जाता है, और अगर कुछ भूल गए तो पिकनिक में मजा किरकिरा हो जाता है. वैसा ही लाइफ का है. अगर प्रिपरेशन अभी कच्ची रह गई तो लाइफ में मजा किरकिरा हो जाएगा. Whatever has happened till now is all right. अभी A grade और B grade के बीच में कॉन्शियस चॉइस करेंगे. One of the very important slide of the day. Sachin is a champion or Vinod Kambli could have been a champion. Story of your life. Sakshi is a champion or Sakshi could have been a champion. Sakshi has to decide what story she wants to be known by. Vinod Kambli could have been A+, but he is at B. If not A+, at least A, better than Sachin. He was. But no self-discipline, no self-motivation, only distraction, problem. Then he has had heart attack also, right? He has a heart condition. Whereas Sachin is fit and fine, no stress, no, and very well off. Financially, socially, right? Internationally, god of cricket. This year plus 2 years plus graduation plus post graduation. 8 से 9 से 10 साल आपका अभी ग्रेजुएशन ही है. एक दिस ईयर प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन. 8 से 9 से 10 साल का स्मार्ट हार्ड वर्क या तो हार्ड वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. If you don't do it now, you will have life of regrets and missed opportunities. And if you do it now, there is a chance of you living a life of happiness and success much higher than what it would be otherwise. It is your choice. 90% plus or 95% plus is possible. It is okay to have scored less till now. 2 choices in your life from today, either to live an A grade life or B grade life. अभी मत बोलना कि हमको नहीं पता था. अब तक नहीं पता था, अभी मैंने आपको लॉजिकली समझाया. If you want to have an A grade life, you have to put in A grade efforts, super efforts from today. आप मेरे साथ ज्वाइन हो कि नहीं हो जाओ. 10 बजे सो जाओ, सवेरे 5 बजे उठ जाओ.
एंड मेक इट अ रूल कि आंख खुले तो उठ जाओ, आंख नहीं खुले तो भी 5 बजे उठ जाओ, अगर 4:30 बजे आंख खुले तो 4:30 बजे उठ जाओ, 10 बजे तो सो ही जाना है, आंख बंद नहीं हो तो भी। और रात को 9 बजे के बाद में मोबाइल गैजेट सब बंद कर देने का, सो दैट ब्रेन का एक्टिविटीज जो है इंटरनेट और ये सब की वजह से जो ज़्यादा एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाए, तो 10 बजे नींद आना चालू हो जाएगा। अगर नींद नहीं भी आती है तो लेटे रहो, गेट अप इन द मॉर्निंग, 5 बजे उठ जाओ, 2-3 दिन भर में सो मत, रात को बराबर 10 बजे नींद आ जाएगी। साइकिल चेंज होती है, अमेरिका से कोई यहाँ आता है तो वो दिन भर में सोता नहीं है, तो रात को उसको नींद आ ही जाती है। इट इज़ अ टोटल साइकिल चेंज, 10 घंटे की 12 घंटे की डिफरेंस है, 14 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और यूएस के कोई भी सिटीज़ में, स्टेट में से आते हैं। वो कवर करने को 3-4 दिन जेटलैग बोलते हैं, आपको भी 3-4 दिन ही करना है, वो तो पूरी जिंदगी ऐसे जिए हैं, 40 साल 50 साल, उनका भी जेटलैग 3-4 दिन में कवर हो जाता है, किसी किसी का 2 दिन में कवर हो जाता है, ये आपका भी हो जाएगा। तो आपके पास स्कूल अटेंड करने से पहले 2-3 घंटे का पढ़ाई का टाइम रहेगा। बहुत सारे सजेशंस आपको देना चाहता हूँ, टाइम का लिमिटेशन है क्योंकि पहले सेशन में इतना ही दे सकता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा सेशन लंबा कर रहा हूँ, राइट, पेंडेमिक है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। Champions live the life of their choice and their choice is always for excellence in whatever they do. How to do it? देखो, ABC of success में बताता हूँ, attitude, behavior, confidence is equal to success. अभी एटीट्यूड नहीं है विनर का, ओवर कॉन्फिडेंस का है या तो अंडर कॉन्फिडेंस का है, एटीट्यूड इतना पावरफुल नहीं है, नेगेटिव हो गया है, फ्रस्ट्रेशन है, ओके नो प्रॉब्लम, वो उसका आपको चेंज करने का आपके हाथ में कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कब होगा, जब भी आपका सक्सेस होगा। तो अभी ये 4 चीज में आपके हाथ में क्या है, द हैबिट्स, माइक्रो हैबिट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपकी बिहेवियर में मैं चेंज करूंगा। मैंने 2-3 आपको हैबिट्स ऑलरेडी सजेस्ट कर दी है, ऑनलाइन की 1-2 हैबिट बताइए, पेन पेपर लेके बैठो, वीडियो ऑन रखो, नहा के बैठो, सोने का, सवेरे उठने का, वो सब बताया। दूसरे बहुत सारे हैबिट्स बताऊंगा जिससे आपका सक्सेस रेशियो, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ये काम करने का जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसको फॉलो करने का आपको मन होगा, आप फॉलो करेंगे, सक्सेस आएगा। कॉन्फिडेंस एक्शन सक्सेस, कॉन्फिडेंस एक्शन सक्सेस, एंड वो साइकिल एकदम परफेक्ट हो गई तो एटीट्यूड भी मैं कर सकता हूँ वाला आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इसकी होगी स्कोर मोर प्रोग्राम में। आपको अपने टारगेट का बोर्ड बनाना है, घर में 3-4 जगह पे लगा देना है, 90 या 95% प्लस, और टॉप रैंक, आप टॉप 500 रैंक डाल दो। नीट में आप मार्क्स लग सकते हो 550 प्लस, वाई नॉट, 600 प्लस, वाई नॉट, 650 प्लस, वाई नॉट। चैंपियन, क्लीन योर कबर्ड्स, क्लीन योर डेस्क्स, अरेंज योर स्टडी मटेरियल, ताकि ढूंढने का टाइम बच जाए। अब दिन का 15 मिनट का ढूंढने का टाइम बच जाता है। अभी we take 240 days, I'm just giving just a rough example, 240 days only, 8 months, रोज का 15 मिनट बचा लिया आपने, तो हाँ, रोज का 1 मिनट बचा लिया तो 240 दिन में आपने 240 मिनट बचा दिए, तो 1 मिनट में आपने 4 घंटे बचा लिए, 5 मिनट में आपके 20 घंटे बच गए, 15 मिनट में आपके 60 घंटे बच गए, 1 घंटे में आपके 240 घंटे बच गए। अब सोचो, क्यूम्युलेटिवली आपके पास 240 से ज़्यादा दिन है, 250, 260, 270, 300, 350 दिन होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स थोड़ी पोस्टपोन होएगी ना। आपको डिसिप्लिन होना है, कोई बोले तभी करना है कि खुद के लिए करना है, तो सेल्फ डिसिप्लिन ईजी है ना। पोस्टपोनमेंट इज द पेरेंट ऑफ फेलियर, सेल्फ डिसिप्लिन इज पेरेंट ऑफ सक्सेस। इसकी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मिलेगी। सेल्फ डिसिप्लिन माइक्रो हैबिट से आती है, टाइम टेबल प्रिपेयर करके उसको फॉलो करने से आती है, और न्यू नॉर्मल के साथ में एडॉप्शन करना है। सेल्फ मोटिवेशन में थोड़ा सा मैंने वाई एंड हाउ बताया, लेकिन और डिटेल में हर एक चीज़ के लिए वाई एंड हाउ रहता है मेरा। मैं जो भी सजेस्ट करता हूँ उसका साइंटिफिक रीज़न रहता है। देयर इज़ नो जादू टोना, देयर इज़ नो मैजिक। सिंपल है, गोल सेट करो, प्लान करो, प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो, परफॉर्मेंस करो, वापस गोल सेट करो, प्लान, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस फॉर माइक्रो लेवल, मेगा लेवल एंड JEE एंड नीट लेवल, CET लेवल।
नाटा लेवल, क्लैट लेवल, बीबीए का एंट्रेंस लेवल, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस लेवल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, माइलस्टोन्स, डेली प्लानिंग, डेली प्रिपरेशन, डेली प्रैक्टिस, डेली परफॉर्मेंस, यही करना पड़ेगा. डेविल इज इन द डिटेल. डिटेल में काम करना है. Somebody has to give you that guidance. Your teachers have been giving you, but somehow we are not connecting with teachers as trainers. No problem. Teachers are experienced. मेरी बात सुनने के बाद में उनकी बात में और दम लगेगा, और उनकी जहाँ जहाँ थोड़ी सी आपको आपके हिसाब से थोड़ा सा ट्विक करना है, आप कर सकते हो. 80% 90% तो उनका इनपुट आपको काम में आने वाला है. पेरेंट्स आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है किस चीज़ के लिए. आप बच्चा जब ये टारगेट बोर्ड बनाते हैं उसको हेल्प करो. बच्चे के या तो उसको बनवाओ, उसको मोटिवेट करो, बच्चे के साथ में बैठ के उसकी बात सुनो, उसको सवाल पूछो. अगर उसको उसकी बात सुनो, उसका दिमाग से सब जो कचरा है वो निकलेगा. जब तक और किसको बताएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे तो बेस्ट है ना. बाहर वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं. अप्रिशिएट योर चाइल्ड इन पब्लिक, डिप्रिशिएट इन प्राइवेट. अकेले में बच्चे को हैंडल करो, अकेले में जो भी नेगेटिव पॉइंट है वो, और पॉजिटिव पॉइंट पूरी दुनिया में मार्केट करो. आपका ही बच्चा है. हेल्प देम ऑर्गेनाइज देयर स्टडी मटेरियल. उसकी ऑन गोइंग ट्रेनिंग रहेगी. सारे प्रोग्राम में हम मम्मी पापा को भी साथ में रखते हैं. हमारा प्रोग्राम भले ही पूरे साल भर में 5 सेशन ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 6 सेशन होंगे, सॉरी. जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले उसके लिए 6 सेशन होंगे, जो नहीं देने वाले उसके लिए 5 सेशन होंगे. राइट. कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इसकी स्कोर मोर प्रोग्राम में होती है. बाय द वे, हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना कि नहीं करना, आज के सेशन का फायदा उठाना. ओके. हिंदी में ही है. टारगेट बोर्ड बनाने हैं, मैंने ऑलरेडी हिंदी में ही बोला है. तो फिर ये क्लास 10 का क्यों आ गया, 1 मिनट. टोटल 6 सेशंस होने हैं. ओके. ये मैं जाने देता हूँ. स्कोर मोर प्रोग्राम का इधर आ जाते हैं 6 सेशंस का, जो क्लास 12 का मैं आपको बताता हूँ. गोल सेटिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्लीपिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स, कंसंट्रेशन टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स, स्टडी टेक्निक्स, इंप्रूविंग वीक सब्जेक्ट्स, टाइम मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट. अगर आप देखें कि इसमें 4 राइट हैंड साइड के, 4 लेफ्ट हैंड साइड के और 2 मिडिल के पूरी लाइफ में काम में आने वाले हैं. दैट इज व्हाई वी से स्कोर मोर इन एग्जाम्स एंड स्कोर मोर इन लाइफ. दिस इज अ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग. Session number 1 is going to be in July. Time 5:30 to 8:30 का रहेगा. Session number 2 will be in September. December, January पर्सनल फैमिली कोचिंग सेशन होगा, करियर गाइडेंस सेमिनार होगा. इन्वेस्टमेंट इज 10,300, क्योंकि एक सेशन नंबर 6 भी है, पर्सनल कोचिंग फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर बोर्ड्स. राइट. 2 कोचिंग तो पर्सनल होने हैं, तीसरा भी हो सकता है. देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा काउंसलिंग. इफ यू कम टू मी फॉर एक्स्ट्रा काउंसलिंग इट इज 4,000 पर आवर, लेकिन जरूरत नहीं पड़ने वाली है. आपका इन्वेस्टमेंट होना है 10,300 का. अगर आप बोर्ड के बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देने वाले हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 6,300 है, क्योंकि वो जो बोर्ड के बाद में जो कोचिंग होने वाला है 1.5 से 2 घंटे का पर्सनल काउंसलिंग होना है, जिसकी वैल्यू एक्चुअली 8,000 की है. बट सिंस यू आर part of the Score More program, if you join, then this is the fee structure. और शायद आपकी बोर्ड एग्जाम के पहले ये जो सेशन होगा सितंबर महीने का, वो टाइम टेबल मैनेजमेंट का एकदम धांसू सेशन होगा, जिसमें डिटेल में आपका टाइम टेबल प्रिपेयर होगा. डेली क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन से टाइम पे कौन सा चैप्टर खत्म करना है, कितने पेपर्स लिखने हैं, वो पूरा प्लानिंग करते हैं और फिर उसको आप फॉलो करना है. और इसमें आपको कांस्टेंट व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, फोन सपोर्ट मिलेगा, ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा. देयर वुड बी अ व्हाट्सएप ग्रुप, 1-way ग्रुप, जिसमें आपको मैं अपडेट्स दूंगा और आपके जो भी कंसर्न है वो हम इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे बात करेंगे. और फिर मुझे लगेगा कि ये सबको फ़ायदा होने वाला है तो उसका वॉइस नोट या वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको ग्रुप पे डाल दूंगा. एंड देयर कैन बी लिटिल रिफ्रेशर सेशंस ऑफ हाफ एन आवर, sometimes in 15 days, sometimes in 7 days. At times I have done, last year we did 11 sessions extra over and above
the score mode program suggested sessions. अभी क्या है, ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, थोड़ा ज़्यादा भी करेंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, लेकिन इतना तो मिनिमम है, लेकिन उसके ज़्यादा 4-5 सेशन तो हो ही जाते हैं। और एक दूसरा एडवांटेज है, ये सारे सेशंस रिकॉर्ड हो जाते हैं। बाई चांस यू मिस द सेशन फॉर सम रीज़न, योर पेरेंट मिस द सेशन फॉर सम रीज़न, देयर विल बी अ 1 वीक लिंक गिवन। ये आज के सेशन का भी लिंक आपको 1 वीक के लिए दिया जाएगा। यू कैन शेयर इट विद एनीबडी एंड एवरीबडी, राइट। आपके मैट्रिक्स एकेडमी के साथ में सारे स्टूडेंट्स को तो शेयर करो, आप दूसरे लोगों को भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, कजिन्स को। वेलकम। 7 दिन के लिए ये ओरिएंटेशन की लिंक ओपन रहेगी। वैसे ही वो प्रोग्राम की लिंक आपको सिलेक्टिवली दी जाएगी। You should not be sharing that with your friends because that would be a paid program. So you have paid for it and it will make sense to you. कोई बंदा पैसा भरे बगैर वो रिकॉर्डिंग सुनता है ना, तो उसको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ओके, तो हम बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स करते हैं। कोई भी दूसरी क्वेरीज है 9323396333, ये मेरा नंबर है। आपको ये ग्रुप में ऐड करेंगे। You can remain in the group or you can leave the group. Your parents will be also added in the group. They can remain or leave the group, no problem. Updates रहेंगे. You can still ask the question. अगर आप paid group में नहीं भी है, आप paid seminar में नहीं भी है, I will try to give you the solution if it is within the purview of suggestion. क्योंकि अगर आप मुझे बोलते मेरा concentration नहीं रहता है, तो वो suggestion में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका training होना जरूरी है. It's a seminar. पूरा सेमिनार से आपका पूरा ओवरऑल ओवरहॉलिंग होता है, थॉट प्रोसेस का और कंसंट्रेशन का, मेमोरी का। मुझे मेरा गैजेट एडिक्शन दूर करना है, वैसे नहीं होता है। देयर इज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस में सब चीज हो जाती है, राइट। सो लेकिन कोई भी कंसर्न है, आप बोलो, अगर हो सकता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर लेते हो तो आपको फायदा होगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। विशिंग यू ऑल अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस, चॉइस एंड चैंपियन, because you can and you will be champions. Thank you. We question answer करेंगे. I know we have exceeded our time. I was expecting to complete by 10:15, so that question answer session would be a bit more, but it can be okay. We can have the session for till the time your questions are answered. Yes, questions please. You can ask the question on chat also personally. You may not want to share your concerns with people in public. You can always type it and I will answer it without taking your name. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप अनम्यूट भी करके बोल सकते हो. Yes, there was somebody who unmuted. Come on, kids, you can ask questions. How many for JEE? How many for CET? How many for NATA? क्या कंसर्न है JEE के प्रिपरेशन में, नाटा के प्रिपरेशन में, नीट के प्रिपरेशन में, CET और JEE के बीच में पंगा चल रहा है? दो रीजन है सवाल नहीं आने के, या तो सब कुछ समझ गया या तो कुछ नहीं समझा। ये चश्मिश बहुत पका रहा है, अभी हम सवाल पूछेंगे तो और लंबा पकाएगा। अभी जयंती मैडम भी है तो सेशन छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं, तो इससे अच्छा सेशन ही शॉर्ट कर दे तो सबको। और कोई सवाल पूछेगा तो सब लोग बोलेंगे तुझे कोई तकलीफ थी, क्यों सवाल पूछा? चश्मिश ने इतना तो पकाया, और ज्यादा पकाएगा। प्लीज आस्क क्वेश्चंस। somebody is giving an NDA test, NDA के लिए opt कर रहा है, is it okay to have, you should have plan A, plan B, plan C, plan D. you know suppose आपने NDA के लिए किया तो आपने नीट के लिए किया, तो नीट नहीं तो क्या, BSc in biology, BSc in zoology, have you thought about it? BSc in chemistry,
BSc इन फिजिक्स, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट। लास्ट मोमेंट पे आप सब जगह पे एडमिशन के लिए भागोगे, बोलेंगे अरे यार इधर तो डेडलाइन खत्म हो गया, एप्लीकेशन देना था, ये था वो था। You should not panic. You should actually keep a lot of options open. Plan A है, it is like you are choosing to go for पाव भाजी खाना है आज, तो आप पाव भाजी का सोच के चले गए पाव भाजी खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर। नया रेस्टोरेंट है, पाव भाजी ऑर्डर कर दिया, आपका पाव भाजी आपने खाना चालू कर दिया, बहुत अच्छा खाना था। लेकिन जब भी आपका पाव भाजी चालू हुआ तो बाजू के टेबल पे सिजलर्स आ गया। हाय ला, सिजलर भी मिलता क्या इधर, अच्छा होता तो वो मंगा लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन सारे देख के आप मेनू देख लो, अच्छा सिजलर भी है लेकिन पाव भाजी खाना है, मैक्सिकन भी है लेकिन पाव भाजी खाना है, चाइनीज भी है लेकिन पाव भाजी खाना है, पंजाबी भी है लेकिन पाव भाजी खाना है, साउथ इंडियन भी है लेकिन पाव भाजी खाना है। फिर आपके आजू बाजू के टेबल में चाहे कुछ भी आ जाए, आपके दिल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने सब कुछ सोच समझ के सारी चीज छोड़ के आपने अपनी चॉइस की है। तो चॉइस करने के लिए अभी आपके पास टाइम है। दिस क्वेश्चन वाज वेरी रिलेवेंट कि ओके, चॉइस करने के लिए क्या करना चाहिए। यू शुड रिवाइज एंड रिव्यू ऑल द ऑप्शंस ऑफ अ पीसीबी स्टूडेंट and all the options of a PCM student or PCMB, whichever field you have chosen, PCMB, PCB, PCM, और सारे ऑप्शंस को एक बार तो देख लो। कहां देखेंगे? yes, their symphony comes to your help. We have a career library, right? लिखो कागज पेन से, CAREER, मैं चैट बॉक्स में डालता हूं फॉर एवरीबडी, एंड वो मैं ग्रुप में भी डालूंगा, आपको ग्रुप में लूंगा। पैरेलल एजुकेशन लेना ही है, या मुझे साइंस के साथ साथ में और क्या कर सकते हैं। करियर गाइडेंस के लिए हम एक और सेशन करेंगे, बट आई विल टेल यू, ये आपको पहले तो करना ही है, चाहे वो सेशन करो कि ना करो। career.symphonyforall.com। I want to become a doctor only, but my motivation is very temporary and gives me demotivation in exam. What should I do for it? It is very normal, because when you are absolutely motivated to become, then there is an anxiety at the time of exams ki what if I don't become successful. वो what if वाला problem है ना, वो confidence और system से आएगा। If you do systematic work, and with that work, when you are getting the result, you will have confidence in your studies, and then demotivation will not come in the way, because confidence, when the jar is full with confidence, demotivation has no scope for entry. You know, if you see the cricketers, the ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा टेस्ट मैच हुआ, और उसमें 2 क्रिकेटर हमारे इंजर्ड थे, बैट्समैन दोनों इंजर्ड थे, वो पूरा दिन खेल लिए, and as a result of that we drew the match. आप समझो, if they had given up, if they had got motivated, क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस था, उनका डिजायर था कि मुझे मेरा 100% देना है, और उनके पास टेक्निक थी, and they kept on keeping that fear aside, their anxiety aside, and they kept on being on purpose. वो खाली काम करते रहे, process, one ball at a time. They did not look at how many balls are remaining. They looked at अभी ये next over में out नहीं होना है, then ये next over में out नहीं होना है। लंच टाइम पे गए अंदर तो बोले कि 1 घंटा तो आराम से खेलना है, आगे का घंटे का बाद में सोचेंगे। फिर जब भी सामने एक बॉल आ रहा है, ये बॉल में आउट नहीं होना है, ये बॉल में आउट नहीं होना है, चांस मिले तो रन भी करना है, ये बॉल में आउट नहीं होना है। सी, डू यू अंडरस्टैंड? द वेरी सेम थिंग, इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम्स। यू आर फोकस्ड ऑन योर सक्सेस, एंड यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर सक्सेस, लेकिन क्या होता है? डिमोटिवेशन होता है, वेरी नॉर्मल। तो डिमोटिवेशन न होने के लिए आपको मोटिवेशन भरना है। मोटिवेशन भरने का काम, उसके लिए हमारे पास सिस्टम है, वो सिस्टम पूरा करोगे तो डिमोटिवेशन के लिए जगह ही नहीं। और मैंने बोला उस तरीके से आपको रोज अपना टारगेट अपनी नजर के सामने हमेशा होना चाहिए, रोज नहीं, हर दम, ताकि आपके नजर के सामने वो रहे। राइट? क्वेश्चंस आर कमिंग इन द पर्सनल चैट।
what are the most important requirements that I need to follow on daily basis and in academics if I am interested in studying abroad in Asian country like South Korea or Japan? आओ, ये तो करियर गाइडेंस का सवाल आ गया. रोज का होमवर्क रोज करना है. Do the homework on the day it is given. Your teachers have planned your study in such a way, they have planned the homework in such a way that you are on track. And if you want to study abroad, you want to study abroad after what? After graduation or after 12th? If you are thinking of studying after 12th in any other Asian country, after 12th, you are too late. You should start today. Talk to an education consultant, foreign education consultant. If you don't have the number, talk to me, I'll give you the numbers. But you need to talk to a consultant and start preparing for it right now. Otherwise, it will be too late. Right? Daily basis पे तो भाई रोज का काम रोज करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, क्लासरूम में बराबर ध्यान दो. अभी क्या करना है वो पूरा डेली जो मैं आपको बताने जाऊंगा तो 3 घंटे का सेशन है, वो तो मैं करने ही वाला हूँ. स्टडी हैबिट्स, राइट? देखो क्या होता है मालूम है, from in the next session I want everybody of you, I know that you may not be in the best of the presentable clothes and presentable way and you have taken it for granted कि मैं वीडियो चालू नहीं करूंगा, तो it becomes very animated conversation. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ में बात कर रहा हूँ. Just talking to names. Only 2-3 people are visible. Vishakha is constantly there, but that's it. So nothing wrong, but I understand कि probably you are not in a presentable state. तो आप या तो कोई लोग मजबूरी में ऑनलाइन है, तो लेकिन अभी आप नेक्स्ट टाइम आना चाहते हो तो प्लीज यू बी रेडी टू कीप योर वीडियो ऑन. इट बिकम्स मोर कंफर्टेबल टू मी, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको वो बताया नहीं गया था कि सेशन में वीडियो ऑन रखना है. बट आई होप यू अंडरस्टूड कि वीडियो ऑन करके आपका ही फायदा होता है. यू नीड टू सेंड मी द आपको मुझे व्हाट्सएप भेजना है बेटा मेरा नंबर पे, राइट? मैं ग्रुप करने वाला हूँ 9323396333. और अरे मैं तेजस को भेज दिया गलती से, एक जन को भेज दिया मेरा नंबर 9323396333. या सो द थिंग इज, अच्छा एक और बात है, हमारा स्कोर मोर प्रोग्राम संडे के दिन चालू होगा, नेक्स्ट संडे मोस्टली. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट इट, इफ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ मी, टॉक टू मी, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. आपको एकदम 100% नक्की करना है, आपको ज्वाइन करना है, आपको बातचीत करने के लिए. अब उसके बाद में आप ज्वाइन करो ना करो, अगर इफ यू हैव सम डाउट्स, यू वांट टू क्लेरिफाई इट, प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी. मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज दे दूंगा. You can book an appointment for half an hour, no charges. How to improve the consistency in studies? Once again, Score More program का पूरा concept है, because consistency is the key to success. तो मैडम, मैं जो आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब स्कोर मोर प्रोग्राम में दे सकता हूँ. आपको थोड़ा आइडिया आ गया रहेगा कि what kind of habits I am going to tell you to follow. If you have certain habits which are consistently followed by you, that consistency in studies will come. Consistency in studies will come only when you put those micro habits in place. कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रात को 10 बजे लाइट बंद करके, मेरा ब्रश करके, फ्रेश होके, नाइट ड्रेस पहन के सो जाना है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग. 5 बजे मुझे उठ जाना है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मुझे इतने बजे खाना खा लेना है, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करके 10 मिनट की ब्रेक लेनी है, 1 घंटा पढ़ाई करके 10 मिनट का ब्रेक लेके वापस 1 घंटा पढ़ाई करना है.
1.5 घंटा पढ़ाई करके 15 मिनट का ब्रेक लेके वापस, और जब भी मैंने रिक्रिएशन के लिए मेरा आधा घंटा रखा है तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा टाइम रिक्रिएशन में नहीं डालूंगा। ये 5 मिनट और 10 मिनट और वाला बात मैं नहीं करूंगा। पढ़ाई में नहीं होता है 5 मिनट और, ब्रेक में होता है 5 मिनट और 10 मिनट और। तो वो कंसिस्टेंसी के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा, राइट। दूसरा है, आपको अपनी जो स्टडी की जो सिस्टम है प्रायोरिटाइजिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। सो ऑल दिस थिंग्स टेक्स सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू पुट इट इन प्रैक्टिस। तो वही ये सब चीज मैं स्कोर मोड प्रोग्राम में बताता हूँ, राइट। सो do the homework on the day it is given, pay full attention in your class so that your time is not wasted, invested. Be up to date about your assignments, be proactive about preparing your final exams or exam tests. Any tests which are there on Tuesday, don't start to prepare that on Monday. Do it on Thursday or Friday, and then on Tuesday morning only you do final revision and give the exam. So there are certain standard things which you need to follow and practice with diligence. क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, you are going to deal with life and death situations. Engineers, critical, architects, critical, scientists, critical, doctors, critical. You are going to be in critical professions. That is why they require diligent people. That is why they require people who score great, because they are going to be like go getters. वो कहीं भी 1% भी गड़बड़ नहीं करेंगे, डायग्नोसिस में नहीं, ट्रीटमेंट में नहीं, डिजाइनिंग में नहीं, एग्जीक्यूशन में नहीं. They will not do any compromise, the engineers. That is what is the difference between A grade engineer and a B grade engineer. IIT में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 5 करोड़ का पैकेज ऑफर होता है, और ऐसे भी बच्चे जिसको 5 लाख का भी ऑफर नहीं होता है. Institute doesn't make a difference much. Even if the best institute, if your effort are less, very bad. हाँ, अगर आप जो गलत इंस्टीट्यूट में चले गए तो आपको एंट्री लेवल में ही, आप कितने भी ब्रिलियंट इंजीनियर क्यों नहीं हो, एंट्री करने में ही टाइम लगने वाला, एंड प्रोबेबली वो मोटिवेशन टिकेगा नहीं लंबे अरसे तक टू बी अप टू द मार्क, क्योंकि हर बार आपको स्टोन वॉल मिलेगी, लोग आपके कॉम्पिटेंसी पे डाउट करेंगे इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ, तो वो प्रूव करने में ही टाइम निकल जाएगा. Right? Questions? You're welcome. Whoever has asked the question has said thank you. Consistency के बारे में. So thank you very much. Somebody else, please. Any questions? Have I not answered some question? Let me check. Yeah, I think I have addressed in, if whatever question you have asked. Huh, you have some other interest also. How can I do it with science? Very simple, beta. I'm telling you, very simple. आप अपना पढ़ाई खत्म कर दो, जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसमें डाल दो, इधर उधर के मगजमारी में मत जाओ. म्यूजिक है, डांस है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्पोर्ट्स है, जो भी है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, दैट इज योर गो टू प्लेस. वो आपका रिक्रिएशन का चांस है. और मेरा भी वही था ना, आई enjoyed helping people, counseling people. I was doing it शौक से कर रहा था, और मेरा तो केमिकल और पेंट का फैक्ट्री था, और इसमें मुझे मजा आने लगा, और उसमें मुझे सक्सेस मिला, तो मैंने केमिकल का फैक्ट्री बंद कर दिया. सिंपल. When your passion becomes profession, everything else can go zero. बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल होना चालू हो गई, मुझे समझ में आ गया कि आई कैन सस्टेन माई लाइफ विद दिस, पीरियड. नोबडी आस्क्ड मी माई क्वालिफिकेशन, राइट? आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट. Of course I trained myself. How can you get more focused towards your studies and get less distracted? As I said, sleep on time, have put in the discipline.
मैंने बोला ना, गैजेट यूज आप लिमिटेड करना पड़ेगा, बिकॉज गैजेट यूज इज एक्चुअली डैमेजिंग योर कंसंट्रेशन. बाकी सब कुछ बाद में आता है. गैजेट यूज इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, cause of distraction. And if you are not doing it, then probably your desire is not strong enough. अरे एक छोटे से एक तुच्छे से पबजी के लिए आप अपना मर्सिडीज छोड़ रहे हो, बेवकूफ हो. वो पबजी तो चलने ही वाला है, क्लैश ऑफ क्लैंस तो चलने ही वाला है. यूट्यूब, वो कैरी मिनाटी हो गया कि आशीष चंचलानी हो गया, बड़ा मजा आता है. वो पैसा कमा रहे, आप देखते हो तो. आप नहीं कमा रहे हो, आप अपना टाइम गंवा रहे हो. नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग एंटरटेन्ड बाय आशीष चंचलानी और कैरी मिनाटी और एनी स्टैंड अप कॉमेडियन. दे आर ग्रेट रिक्रिएशन थिंग्स. वो 15 मिनट देखो ना, तो हम बिंज वॉचिंग करते हैं ना, देखते जाते और मजा आता है, और मजा आता है. एक और 5 मिनट और 10 मिनट और 15 मिनट और. हाँ, सेम टू सेम आप बार बार लगातार सुनते हो. लेकिन टीचर पहली बार कोई चैप्टर समझाती है, वो नहीं सुनते हम. नथिंग रॉन्ग. ये आप खाली कंपैरिजन करो, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, पकड़ो, प्रायोरिटी को पकड़ो. टेक द प्रायोरिटी. योर प्रायोरिटी इज इंपॉर्टेंट. यस. सो आपको अगर फोकस होना है तो आपकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और वो प्रायोरिटी के हिसाब से आपको बातचीत करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी के हिसाब से आपको अपना काम करना पड़ेगा. यू हैव टू हैव द प्रायोरिटी to get focused towards your studies. आपके लिए मर्सिडीज इंपॉर्टेंट है कि वो YouTube वीडियो इंपॉर्टेंट है? Yes, you can make that to your career. Yes, लेकिन वो बैकअप प्लान क्या है? अगर आपको YouTube वीडियो बनाना, आपको करियर बनाना है, how many YouTubers are making money? Till the time you start making money, at least have a backup plan. नहीं तो फिर मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा. Nothing wrong. I'm telling you, YouTubing is a next generation profession. लेकिन आपका सक्सेस उसमें सर्टन है कि नहीं, वो उतनी सर्टनिटी आई नहीं है. And everybody has a life cycle on YouTube also. Consistent content churn out करना. आपको पता है प्लेगरिज्म होता है. अगर आपने किसी का जोक रिपीट कर दिया, वो बंदा आप पे केस कर देता है, क्योंकि अभी वो पैसे वाली बात हो गई है और सब ओपन है. आप कितना ओरिजिनल कंटेंट रोज दे पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है. आपके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है तो यू आर आउट. So it is not easy, my dear friends. You want to crack UPSC exam, so I thought if it requires graduation, preferred working for the JEE. मैं बोलूं क्या, JEE के बदले CET मारो, CET मारो. Somebody has asked, IPS बनना है. मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में जाओ. You can become साइबर क्राइम में मास्टर, कंप्यूटर साइंस में जाओ. नॉट नेसेसरीली, आई एम टेलिंग यू, नॉट नेसेसरीली JEE के खाली 20% कोटा है महाराष्ट्र के अंदर. बहुत मिसमैनेजमेंट कर रहे हो आप अपना. VJTI में JEE का कोटा खाली 20% है. SPIT में JEE का कोटा खाली 20% है महाराष्ट्र के लिए. आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए 20% है. 50% कोटा इज फ्रॉम CET. JEE आपको अगर आ रहा है इतना मार्क्स, मैं बोल रहा हूँ JEE में किसी को 150 आया है, मुंबई वाले को, उसको महाराष्ट्र में VJTI में एडमिशन नहीं मिलता है. वो 100 वाला आउटसाइड महाराष्ट्र वाला VJTI में एडमिशन ले लेता है. कोटा सिस्टम है. जो बंदा 12th में CET में अच्छे मार्क्स लेके आता है, वो JEE उसने नहीं किया है, वो VJTI में एंट्री ले लेता है, क्योंकि वो 50% का कोटा में उसका रैंकिंग आ गया. आप JEE में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ गए, लेकिन आपसे ज्यादा मार्क्स लेने वाले ने VJTI में अप्लाई कर लिया, इंडिया महाराष्ट्र वाले ने, तो आपको नहीं मिलेगा. JEE में यू आर लिमिटिंग योर स्कोप टू सम एक्सटेंट. अगर आपको आगे जाके IIT का इतना भूत नहीं है, तो क्यों JEE दे नहीं है, आप CET दो. बहुत सारे ऑप्शंस है. और इंजीनियरिंग प्लस UPSC बॉस, यू विल बी द बॉस. किलर कॉम्बिनेशन है. जो भी आपने सोचा है, इट इज नॉट ऑन राइडिंग ऑन 2 बोट्स, यू आर राइडिंग ऑन अ स्पीड बोट.
you are riding on a speedboat, but then you will have to do छोड़ छाड़ के प्रीतम की गली अनारकली पढ़ने चली. Yeah, online home based jobs are in trend. So till that extent, it is good as a source of income. Till what extent? Like many sites promise consider over 1 or 2 hours every day. Okay, that is career guidance question, but I will answer that question. Acha, sir, are we having career guidance session today afternoon? Because there are 12 registrations. At 12, we have a career guidance session. I want to know whether we are going ahead with it or not. I think if we have 12 registrations, should we go ahead with it? Can you ask Jayanti ma'am, please? Okay, sir. Like I'll just check on this. Please and check I'll with, get back to you. yeah, because if we have to do that session, then Okay. 11 o'clock टाइम था शायद उसका. मैं देख लेता हूँ मेरी मीटिंग का टाइम Okay, क्या sir. है. एक मिनट बच्चा लोग. I'll just. Yeah, it is 11 a.m. time. So if we are going ahead with it, which I believe we should, just a moment, bachcha log, I'm so sorry, because I have to keep my mind on two things. 11 o'clock schedule tha next session ka. You can keep asking questions. Okay, so online home-based jobs are in trend. They are all, there are subjectives. Oh, shayad it is a scam, shayad it is not. So you can give it a try. But देखो, for me there is, I have 2 online jobs. 2 online job नहीं है, online work है. Flexible timing में काम करने के लिए 2 options है. Graduates, psychologists, teachers, passionate people के लिए मेरे पास बहुत अच्छे options है. And there are people who are earning 50-60,000 by working flexible timing along with the, but कितने जन authentic है, कितने जन नहीं है, आपको पता होना चाहिए. That is very subjective and objective. So I cannot. So how reliable they are, as reliable you can think about them to be. Sir, there are 11 registrants in that. Yeah, that is the doubt that always comes in the mind. So right now, don't think about it. Right now, your job is to complete your 12th in integrity and then give it a try. Lag gaya to तीर नहीं तो तुक्का. What goes in trying? जैसे बोलते हैं ना, what goes in asking. Yeah, आपके लैंग्वेज में what goes in पूछिंग. पूछो. You should ask questions to people. Sir. Yeah. That session has been done, sir. Like. But people have done, matlab, yesterday there was that session. Okay. Which they were told to Hmm. come to, but nobody came. And there are people who have registered yesterday night. Okay. Rishit Solanki, Ayush Sinha. Last night they have registered. Riddhi Hole. Okay. Then Karishma Raut. They all registered last night. Mrudula Patil registered day before. Okay. Rahul Shahi, Ganesh Guge, and Tejas Parekh and Priya Guge. They attended yesterday. They did attend or not पता नहीं है, लेकिन उनका registration 2 दिन पहले का था, लेकिन कल रात का 5 जन का registration है. So do I, you know what I will do is I will put that session on at sharp 11 o'clock and check whether they are there. You have my number, sir. Okay. So you can ask me whether the people Yes. are there or not. So और आपके पास वो link भी है. You Sure, can just register and join if you Okay. want. Right? Yes. Okay, sir. बच्चा लोग अपने पास 5 मिनट है खाली. You can ask me the questions and I will put you on the group. You can ask me the questions there also. Right? We will do that, right? Because I will need that 5 minutes. अच्छा सर, अगर यहाँ के कोई बच्चे हैं जिनको करियर गाइडेंस में इंटरेस्ट है, तो उनको भी आप लिंक भेज दो. They can join. I don't mind. Okay, sir. Sure. Yeah. क्योंकि they are asking career related genuine questions. Probably अगर Okay. अभी उनको आना है तो आ जाए. 5 मिनट में Okay. सेशन चालू होने वाला है.
बराबर sir. Bacha Party, I really appreciate your patience. You stayed till the end, most of you. Okay. So, ma'am is there? Ma'am Twinkle is ma'am. another. She's on the another meeting, sir. That's why Okay. like So I'm we'll taking just the charge. complete it, sir. Thank you very much, sir. You want to say something to complete the session? Thank you. Yes, sir. Okay, I, Mr. Siddharth Kale, on behalf of Mathematics Academy School Senior Section, would like to thank our host program, Mr. and Mrs. Paresh Shah, for his valuable guidance for all our dear students for class 12. I would also like to thank to all the parents and students for making the program great success. Yes. And also thanks to Jayanti ma'am for this giving this opportunity. Thank you once again, everyone. Have a Thank nice you. day. Yeah. Stay safe. Yeah. Yeah. Bye. Good day. I have to end the session because I have to start the Okay, next sir. session. Thank you. Okay, sir. Yeah. Good day. All the best, everybody. God bless you.